Namaskar to my all viewers, subscriber and my dear students. In this video, I'm going to deal the concept of women empowerment, what are the different definitions of women empowerment and what are the indicators which are already mentioned for women empowerment concept. So we start our video. Women empowerment is a process, not an event, that challenges traditional power equations and relations. This empowerment of women requires a set of assets and capabilities at the individual level and at the collective level. मतलब एम्पावरमेंट जो कंसेप्ट है आपने पहले भी पढ़ा है कि एम्पावरमेंट कंसेप्ट इज़ बोथ फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द कलेक्टिव. तो उसी तरह से एम्पावरमेंट के ही सब स्ट्रीम में हम विमेन एम्पावरमेंट को देखते हैं, जो कि एक कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों ही टर्म के लिए यूज़ किया जाता है. और इट इज़ द प्रोसेस. ये याद रखिएगा कि विमेन एम्पावरमेंट या एम्पावरमेंट जो कंसेप्ट है वो एक प्रोसेस है. इस कंसेप्ट को कबीर ने, नैला कबीर जी हैं, उनकी बुक रिसोर्स एजेंसीज अचीवमेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन द मेजरमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट एंड चेंज में बताया गया है. नेक्स्ट कंसेप्ट, the social empowerment. In this paragraph I am talking about the social empowerment, as we know that empowerment is a multi-dimensional concept, that is political empowerment, economic empowerment, social empowerment, family empowerment. ये सब अलग अलग इसके आयाम होते हैं, डायमेंशन होते हैं. In this paragraph I am going to tell about the social empowerment of women, which is long and difficult process as it requires a change in the mindset of the people. Social empowerment is a very difficult process. क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की बात करते हैं. और आप जानते हैं कि एक बार जब हमारा माइंडसेट डिसाइड हो जाता है, तय हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर के, तो उसे बदलना बहुत ज़्यादा ईजी टास्क नहीं होता है. The mindset is often reinforced by poverty, illiteracy, and lack of social and gender awareness. Sincere efforts are needed to break the vicious circle and thus help eliminate poverty and enhance the status of women in the family and the society. Both the pace of development and the process of democratic decentralizations depend on women's empowerment, so that and a number of mechanisms have been established in India. तो सोशल एम्पावरमेंट की बात हुई कि ये जो है ये बहुत लॉन्ग और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि ये माइंडसेट से गवर्न होता है. और माइंडसेट किन किन चीज़ों से बनता है? हमारे पावर्टी के कंडीशन को लेके, इलिटरेसी को लेकर के, लैक ऑफ सोशल एंड जेंडर अवेयरनेस को लेकर के ये हमारा माइंडसेट तैयार होता है. और माइंडसेट आसानी से बदला नहीं जा सकता है. The most conspicuous feature of the term empowerment is that it contains the word power. पिछले वीडियो में जब मैं empowerment concept को बता रही थी, तो मैंने बताया था कि empowerment को समझने से पहले we have to know about the power concept. तो इसी तरह जब हम women empowerment को समझेंगे तो ये word power से ही जुड़ा हुआ है. To sidestep philosophical debate, it may be broadly defined as control over material assets, intellectual resources, and ideology. The process of challenging existing power relation and of gaining greater control over the sources of power may be termed as empowerment. This broad definition is defined by feminist scholars and activists within the context of their own regions. इस कॉन्सेप्ट को बाटलीवाला, श्रीलता बाटलीवाला ने अपनी बुक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन साउथ एशिया कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, एंड द सेकंड बुक इनकी जो है द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट्स न्यू कंसेप्ट फ्रॉम एक्शन, उसमें इन्होंने ये बात बोली है विमेन एम्पावरमेंट से कि एम्पावरमेंट तब हम समझेंगे जब एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन, जो पहले का एक रिलेशन इस्टेब्लिश है जिसमें कि मेल डोमिनेंस होता है और फीमेल हम उसको दबा करके रखा जाता है, इस कंसेप्ट को उलटते हुए
और हम जो भी पावर है उस पर कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, इससे एम्पावरमेंट का कंसेप्ट डिफाइन होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एम्पावरमेंट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दैट चैलेंजेस पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी एंड मेल डोमिनेंस। इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करिएगा। ये शांति कोली चंद्रा क्या है डेफिनेशन, जिसमें इन्होंने कहा है कि इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दैट चैलेंजेस पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी एंड मेल डोमिनेंस। It is both a process and the result of the process. This is very important line. उन्होंने कहा है कि empowerment is a process जो हम जानते हैं and it is also the result of that process. क्योंकि जब ये प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में हम क्या देख रहे हैं कि पावर पे कंट्रोल हो रहा है विमेंस का, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज पे विमेंस का कंट्रोल हो रहा है, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी को चैलेंज मिल रहा है। तो ये सब जो रिजल्ट दिख रहा है वो भी एम्पावरमेंट की ही वजह से है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इनेबल्स विमेन टू गेन एक्सेस टू एन कंट्रोल ऑफ मटेरियल एज वेल एज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। शांति कोली चंद्रा की बुक है विमेन एंड एम्पावरमेंट, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये उन्होंने डिफाइन किया था विमेन एम्पावरमेंट को। Now we are moving to another concept of again Srilata Batliwala. The mid-1980s saw the term empowerment becoming popular in the field of development, especially in reference to women. As Srilata Batliwala observed, in grassroots programs and policy debates alike, empowerment virtually replaced terms such as welfare, upliftment, community participation, and poverty alleviation to describe the goal of development and interventions. तो उन्होंने श्रीलता बाटलीवाला ने बताया कि जैसे आपने जब एम्पावरमेंट का कंसेप्ट पिछले वीडियो में देखा था, उसमें देखा था कि 1970s से ये वर्ड जो एम्पावरमेंट है वो एकेडमिशियंस इसको यूज़ करना शुरू किए थे और 80s तक आते आते एम्पावरमेंट को विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, empowerment has become the key solution of many social problems. एप्टे JS एप्टे का कहना है कि इट इज़ द की सॉल्यूशन ऑफ मैनी सोशल प्रॉब्लम्स। जो बहुत तरह के सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए ये एक की सॉल्यूशन है, जैसे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, इन सब का एक की सॉल्यूशन है विमेन एम्पावरमेंट। द कंसेप्ट ऑफ विमेन empowerment appears to be the end result of number of important critical discussions, dialogues and debates generated by women's movement throughout the world and particularly by third world feminists. तो मेरे ख्याल से आपको एप्टे JS एप्टे का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इनकी बुक है एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट। अब हम कार्ल की बुक को देखते हैं जिसमें कार्ल सॉन्डर्स और कार्ल मैरलिन ने दिया। कार्ल सैंडर्स की बुक थी इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशन एंड मैरिन कार की बुक थी स्पीकिंग आउट विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन साउथ एशिया। इसमें इन्होंने क्या कहा है इसमें ध्यान से रखिएगा, चैलेंज पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी। जो प्रोसेस पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी को चैलेंज करता है वो विमेन एम्पावरमेंट होता है। They open that the goals of women empowerment are to challenge patriarchal ideology, to transform the structure and institutions that reinforce and perpetuate gender discrimination and social inequality, and to enable poor women to gain access to and control of both material and in informational resources. तो कार्ल, जो दोनों कार्ल हैं, मैरलिन कार एंड सॉन्डर्स कार, इनका कहना है कि एम्पावरमेंट जो कॉन्सेप्ट है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो गोल है वो है पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी, जो पैतृक विचारधाराएं होती हैं उनको चैलेंज करना, एंड इनेबल पुअर वुमेन, जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब इन द सेंस इकोनॉमिक और एजुकेशन वाइज भी और अवेयरनेस के वाइज भी, तो उनको ज़्यादा कंट्रोल उनका अपने मटेरियल और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज पे
हो सके इस प्रोसेस को हम विमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है देवदास का, इनका नाम है पूरा राजनमल पी देवदास। इनकी बुक है इंट्रोडक्शन इन एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट। इन्होंने क्या कहा कि ट्रू एम्पावरमेंट डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड ऑफ पर्सन एंड एम्पावर्ड वुमेन हैज़ अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। ये एम्पावर्ड वुमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा कि हैज़ पॉजिटिव सेल्फ इमेज and take an active part in decision making related to herself, her family and community। तो empowered women कौन है? जो कि सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखती हो, मतलब आत्मसम्मान को देखना कि मैं खुद को अपने को नीचे न समझना, और हर तरह के डिसीज़न मेकिंग में, चाहे वो खुद के बारे में डिसीज़न हो, चाहे फैमिली के बारे में डिसीज़न हो, चाहे कम्युनिटी के बारे में डिसीज़न हो, उनके पास ये डिसीज़न लेने की क्षमता हो। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू देवदास, एम्पावरमेंट इम्प्लाइज ग्रेटर एक्सेस टू नॉलेज एंड रिसोर्सेज। नॉलेज और रिसोर्सेज पे ज़्यादा पहुँच होनी चाहिए। ग्रेटर ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड ग्रेटर एबिलिटी टू ओवरकम रेस्ट्रिक्शंस एंड कंस्ट्रेंट imposed by customs, beliefs and practices, and self-confidence. This is very important. Self-confidence and understanding of the importance of human values, rights and privileges to a more dignified and satisfactory way of life। बहुत डिटेल में इन्होंने empowered women के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, जिसमें बताया कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए एट ऑल लेवल्स, हर सेल्फ, हर फैमिली, हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी, और साथ में इन्होंने क्या बताया, एक्सेस टू नॉलेज, मतलब ज्ञान और संसाधन, नॉलेज एंड रिसोर्सेज तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। इन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, और साथ में कस्टम्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, इन पे इनका एक श्रद्धा इनकी होनी चाहिए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत है इम्पॉर्टेंट है कि खुद को वो सम्मान दे, साथ में ह्यूमन वैल्यूज़, राइट्स, प्रिविलेजेस, इन सब को भी वो समझे। तो ये होंगी एम्पावर्ड विमेन। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं एम्पावरमेंट का, कि एम्पावरमेंट दस मीन्स realization of self-worth and potential and the emphasis on information, knowledge and self-attitude. In a similar vein, defines empowerment a process that helps people gain control of their lives through raising awareness, taking action, and working in order to exercise greater control, and in the feeling, the activities, the psychological energy to accomplish one goals। मैं अब PKB नायर सर के डेफिनेशंस को बोलने जा रही हूँ। इन्होंने भी विमेन एम्पावरमेंट में, और पिछले साल ही मे बी दिसंबर में ये हमें छोड़ के चले गए थे। बहुत ही रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट थे PKB नायर सर, जो कि केरला में थे सेट। तो इन्होंने डिफाइन किया है कि पावर, द बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन द कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट मे बी डिफाइंड एज द capacity of a person or a group of person to influence the behavior of others even against their will। तो इन्होंने पावर को डिफाइन किया है कि सबसे पहले तो एम्पावरमेंट में जो पावर है वो मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसमें इन्होंने बताया कि पावर क्या है, कि द कैपेसिटी ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। हम दूसरे के व्यवहार को किस तरह से प्रभावित कर सके, ये एम्पावरमेंट का कंसेप्ट आता है। पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्स और डिसीजन मेकिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द ऑपरेशनल पार्ट इन द इनैक्टमेंट ऑफ पावर। As a matter of fact, these are the key to the enforcement of power। ये PKB नायर सर के का कॉन्सेप्ट है विमेन एम्पावरमेंट में। अब हम आगे चलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट में, और इसको सेम मैंने हिंदी में भी डिस्क्राइब किया है और यही मैं इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर रही हूँ। जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, बीजिंग कॉन्फ्रेंस, उसमें ये इंडिकेटर्स के बारे में बात हुई थी।
Perhaps one of the clearest indicators of women empowerment is an increase in women capacity and willingness to support other women. सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वही है कि women की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं है, and to work diligently towards strengthening women in their effort to service. The probability of realizing women freedom is increased through their awareness of the plight and possibilities they share with other women. इस बात को शिबुतानी ने बोला है अपनी बुक रेफरेंस ग्रुप्स एज पर्सपेक्टिव अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने ये बात कही. अब हम लोग अपने इंडिकेटर्स की तरफ मूव करते हैं, जिस इंडिकेटर्स को 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन बीजिंग 1995 में कुछ क्वालिटेटिव्स एंड कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स की बात हुई थी, ताकि हम पहचान सके कि सच में एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं. तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स ऑफ एम्पावरमेंट पे चर्चा करेंगे. क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स पे बात हो रही है. पहला है इंक्रीज इन सेल्फ स्टीम, individuals and collective confidence. Second, increase or decrease in personal leisure time and time for child care. Next, increase or decrease in workloads of women as a result of new program. क्या नए नए कार्यक्रमों के तहत महिलाओं के जो वर्क प्रेशर है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. चेंजेस इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द फैमिली एंड इन द कम्युनिटी. Visible increase or decrease in levels of domestic violence and other forms of violence perpetrated on the women and girl child. क्या सच में डोमेस्टिक वायलेंस या अदर तरह के जो वायलेंस हैं जैसे रेप है, ये सब चीज़ें हैं, क्या ये सब केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. विजिबल चेंजेस इन वीमेंस पार्टिसिपेशन लेवल. Example, are more women attending public meetings, training programs? Are women demanding participation in other events relating to their life? क्या women का participation जो है वो बढ़ रहा है? किस टाइप के participation? पब्लिक मीटिंग्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, क्या इन सब में women's का participation बढ़ रहा है? Increased access to and ability to gather information and knowledge not only about the project but about what affects their lives. Formation of cohesive and articulate women's increased access to and the ability to gather information and knowledge not only about the project but about what affects their life. Formation of cohesive and articulate women groups collective at the village level, district, block, state level. क्या इन सब लेवल्स पे, इसमें हम पंचायती राज की चीज़ों को ध्यान देंगे कि क्या इन सब लेवल्स पे विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा है या घटा है. जैसे पंचायती राज सिस्टम आपने पहले वीडियो में पढ़ा है कि 3 लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड ग्राम लेवल पे. तो क्या इन लेवल्स पे विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है. पॉजिटिव चेंजेस इन सोशल एटीट्यूड्स अमंग्स द कम्युनिटी मेंबर्स टूवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड द गर्ल चाइल्ड. मतलब सोशल एटीट्यूड्स बदला है या नहीं बदला है लोगों का. अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ विमेन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन विद इन एंड आउटसाइड द होल्स. क्या विमेन अगर इकोनॉमिक एम्पावर्ड हैं तो क्या वो खर्च करने की मादा रख रही हैं कि नहीं रख रही हैं, या उन्हें वो पर्याप्त रिकग्निशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. विमेन्स डिसीजन मेकिंग ओवर द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग. इज़ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन हर कंट्रोल और इज़ शी स्टिल subservient to male members in the family. तो क्या डिसीज़न मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है या अभी भी वो उसी तरह हैं. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिकली दे आर रिच, मतलब दे आर इन इनकम ग्रुप, बट क्या वो खर्च करने का पावर उन्हें मिला है या नहीं मिला है. तो ये कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं विमेन एम्पावरमेंट के, जिसे बीजिंग कॉन्फ्रेंस में दिया गया था. अब हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. वो क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स थे और अब ये क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं.
क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स ऑफ एम्पावरमेंट, उसमें है पहला डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। हमें थोड़ा डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की तरफ देखना होगा कि क्या मैटरनल और मोर्टिलिटी रेट्स जो है उसमें फ़र्क है, मतलब मातृत्व दर और जो शिशु मृत्यु दर होती है क्या उसमें चेंजेस हैं, फर्टिलिटी रेट्स, सेक्स रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज एज ऑफ मैरिज, क्या इनमें चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। फिर नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ विमेन पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कि अलग अलग जो विकास संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें औरतों का कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है। ग्रेटर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर कम्युनिटी रिसोर्सेज, गवर्नमेंट स्कीम्स, सर्विसेज, एग्जाम्पल जैसे क्रचेस, क्रेडिट, सेविंग ग्रुप्स, कॉरपोरेशंस, NFE सेंटर्स, स्कूल, वेल्स एक्सेट्रा, इस पे इनका कितना पहुँच सुनिश्चित हुआ है। नेक्स्ट, विजिबल चेंजेस इन फिजिकल हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशनल लेवल, इनके न्यूट्रिशनल लेवल और इनके फिजिकल हेल्थ में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेंजेस इन मेल या फीमेल लिटरेसी लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एडल्ट लिटरेसी इंक्लूडिंग एनरोलमेंट एंड रिटेंशन रेट्स। हमें ये भी चेक करना होगा कि जो लिटरेसी रेट है उसमें कितना फ़र्क है, जो एनरोलमेंट हो रहा है और साथ में ड्रॉप आउट्स जो हो रहे हैं उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्टिसिपेशन लेवल ऑफ विमेन इन पॉलिटिकल प्रोसेस एट द लोकल लेवल, और लोकल लेवल पे जैसे पंचायती राज की ही बात हो रही है उसमें विमेंस का कितना पार्टिसिपेशन है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू तो बहुत सारे रिजर्वेशंस हम उन्हें दिए हैं ताकि उनका एनरोलमेंट या उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़े, पर क्या वाकई उनका रोल बढ़ रहा है या सिर्फ एक वो पपेट की तरह काम कर रही हैं। तो ये इंडिकेटर्स कुछ डिसाइड किए गए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स को। तो आपको जब अगर विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट आता है तो आप ये बाटलीवाला, नैला कबीर और जो आपको मैंने शिबुतानी और अलग अलग देवदास और PKB नायर, इन लोगों का कंसेप्ट बताया, आप उसे ज़रूर लिखिएगा, पर साथ में इंडिकेटर्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन प्लस इंडिकेटर्स मिल करके विमेन एम्पावरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पावर्ड विमेन, जिसको कि देवदास ने बहुत अच्छे से समझाया था, उसको आप लिखेंगे तो आपके कंप्लीट आंसर होंगे। और मैं हमेशा रेफरेंस पे बहुत ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं थिंकर्स और स्कॉलर्स प्लस उनकी बुक, पब्लिकेशन, इन सब को भी मैं कोट करती हूँ, तो वो एग्ज़ाम में आपके आंसर को और मजबूती प्रदान करेगा। BA, MA या नेट और नेट के लिए, या फिर आप मेंस में अगर आप लिख रहे हैं इन सब क्वेश्चंस को, तो आपको रेफरेंस के साथ कोट करना बहुत ज़रूरी होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर इस पे कमेंट करिएगा। अपने कुछ सजेशंस को आप हमसे मुझे दे सकते हैं। आप दूसरों से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो मुझसे ज़रूर संपर्क करिएगा। और तब तक के लिए आप सभी को प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। बाय बाय, ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।